हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विकास। तो दोस्तों इस वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे थर्ड वीक ऑफ दिसंबर के। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए फ्रेंड्स अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। So students, we have an app by the name Careers Cloud which you can go and download using the Play Store, and it is available only for the Android users as of now. Once you have downloaded and opened the app, you will see a page such as the second screen here. Then you just need to log in with your Google ID, or you can say with your Gmail ID on this application, and once you have logged in, you are ready to use the particular application. As you can see, you will be seeing here my course, all courses, crack current affairs. Just click on any of those and you will be directed to a second page. Here now, what are the features or why we recommend you to use the app? Because on the app we provide you daily current affairs both in English as well as in Hindi. Both Hindi and English current affairs are provided you daily along with the quiz sessions. This is important. We provide you daily with the quiz sessions that will help you to brush up your current affairs that you gained today through our video or any other notes provided. These English and Hindi PDFs are also provided to you daily. This is provided on our app course that you can go and purchase. Two types of courses are there, 1 year plan and a second year plan, which you can opt as per your need. Then we provide you with weekly videos, not just weekly videos on YouTube and monthly videos, daily videos are also given. Apart from that, weekly PDFs of current affairs are provided to you. Compiled PDF of current affairs of the whole week will be provided to you both in English as well as in Hindi. Then similarly for the month also you will be provided a compiled video of the whole month both in English as well as in Hindi PDF for the current affairs that will brush up your current affairs very much. Apart from this, we provide you with the topic wise current affairs, topics such as apps and web portals, important days, books and authors, then comes your sports, then comes your obituary, national affairs, international affairs, sports. These all topics are covered by us on our YouTube channel, which you can go and check it out also. Very important this section, because we provide you with the PDFs also with them that helps you to revise through a particular order, and it is very helpful to you, so you should definitely check it out. Then apart from it, we provide you questions regarding your particular exams also, such as bank, related to your banking. We provide you questions, we provide you PDF, we provide you material that will help you to revise those topics, those important topics. So very important. All right, so I definitely recommend you to check our app and do revise and to purchase the courses, because they will be very helpful to you. These I strongly recommend you to use our app as well as website, and the quiz provided on the app is very helpful to you on the daily basis, and our monthly study material for your exams will do wonders. So do watch the video for the revision purposes, they are very helpful. And if you use my code Vikas10, straight away you will be getting an additional 10% discount on the purchase you made using the application. So additional discount for you students just from my side. It is a happy hour sale, you can say 10% discount using Vikas10. So friends, let's start with the session now. तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया एंड डैश कौन सी मिनिस्टर ने एक एमओयू साइन किया फॉर डाटा एक्सचेंज। ये एमओयू काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। डाटा एक्सचेंज के लिए एक एमओयू साइन किया गया था एफआईयू इंडिया ने किस मिनिस्ट्री के साथ फॉर डाटा एक्सचेंज, बताइए कौन सी रहेगी मिनिस्ट्री। वो है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखना, पहला क्वेश्चन काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, फाइनेंस इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया, और अगर याद हो तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी, इनके द्वारा ये एक एमओयू साइन किया गया ताकि आपका डाटा एक्सचेंज में काफ़ी हेल्प रह सके ऑन ऑटोमेटिक एंड रेगुलर बेसिस। अगर एफआईयू इंडिया की बात करें तो ये आपका 2004 में इस्टेब्लिश किया गया था। पंकज कुमार मिश्रा जी इनके डायरेक्टर रहेंगे, एंड हेडक्वार्टर की बात करें तो वो है न्यू दिल्ली में। ठीक है, चलो नेक्स्ट,
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने एक एमओयू साइन किया विद वेस्टर्न यूनियन टू एनेबल रियल टाइम क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन। एक क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन के लिए किस ऑर्गेनाइजेशन ने वेस्टर्न यूनियन के साथ टाइप किया ताकि रियल टाइम क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस पॉसिबल हो सके। दो मतलब बॉर्डर के बाहर इस कंट्री से इस कंट्री के बीच में ट्रांजैक्शन ईजिली हो सके। तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने ये एमओयू साइन किया वेस्टर्न यूनियन के साथ? तो एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड, एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ब्रांच ने ये एमओयू साइन किया। ठीक है, चलो और चीज़ एक चीज़ याद रखना, एनपीसीआई है ना, ये आपकी एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये देखभाल करती है सारी चीज़ों का फॉर ऑपरेटिंग रिटेल पेमेंट्स एंड सेटल पेमेंट्स इन इंडिया। ये एक इनिशिएटिव था किसका? आरबीआई का, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ये इनिशिएटिव रहेगा। नेक्स्ट, और एक चीज और याद रखना, ये एनपीसीआई है ना, ये नॉट फॉर प्रॉफिट, ये कंपनी एक नॉट फॉर प्रॉफिट इस एजेंडा के अंडर वर्क करती है। नेक्स्ट, किस कंपनी ने सेफगार्ड लॉन्च किया अ टोकनाइजेशन सॉल्यूशन टू बिकम द फर्स्ट पेमेंट प्लेटफॉर्म टू टोकनाइज कार्ड ऑन वीजा, मास्टरकार्ड एंड रूपे नेटवर्क्स? बताओ किस कंपनी ने सेफगार्ड ये लॉन्च किया जो कि एक टोकनाइजेशन सॉल्यूशन है टू बिकम द फर्स्ट पेमेंट प्लेटफॉर्म टू टोकनाइज कार्ड्स ऑन वीजा, मास्टरकार्ड एंड रूपे नेटवर्क? ये बना आपका फोन पे। फोन पे ने फोन पे का सेफगार्ड लॉन्च किया जो कि एक टोकनाइजेशन सॉल्यूशन है फॉर ऑनलाइन डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस। ठीक है, ये आपका जो फ़ोन पे का सेफगार्ड है ना, ये सारे मेजर कार्ड नेटवर्क जैसे वीज़ा, मास्टरकार्ड, रूपे, इन सब को क्या करता है? ये सपोर्ट करता है। ऑलराइट, और ये जो फ़ोन पे बन गया है, ये पहला पेमेंट प्लेटफॉर्म बन गया है टू टोकनाइज द कार्ड्स। विच कंपनी लॉन्च्ड, सेम क्वेश्चन आ गया, रिपीटेड है ये। नेक्स्ट पे चलिए। नेक्स्ट कह रहा है कि किन को अपॉइंट किया गया एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पीरामल रियलिटी इन दिसंबर? पीरामल रियलिटी के ब्रांड एम्बेसडर किन को घोषित करा गया? फरहान अख्तर को, काफ़ी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पीरामल ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर अभी फरहान अख्तर जो कि एक एक्टर है, इनको घोषित करा गया, याद रखना। नेक्स्ट, अगर राहुल द्रविड़ की बात करें तो आपको याद होगा इनको हेड कोच बनाया गया। अभी हेड कोच बनाया गया किनका? मैन की सीनियर क्रिकेट टीम का, ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। मैन सीनियर इंडियन क्रिकेट टीम के हेड कोच कौन बने? राहुल द्रविड़। इंडिया हैज co-chaired the steering leadership meeting of the Global Methane Initiative GMI. When was GMI launched? सिंपली पूछा गया कि GMI को लॉन्च कब किया गया था। GMI है ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव। ठीक है, इंडिया ने को चेयर किया स्टीयरिंग लीडरशिप कमिटी मीटिंग को ऑफ द ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव। पूछा जा रहा है कि ये GMI लॉन्च कब किया गया था? 2004 में ये GMI लॉन्च किया गया था। ठीक है, ये होता क्या है बेसिकली, आपका मीथेन जो ग्लोबल पूरे वर्ल्ड में जो मीथेन का एमिशंस है, ठीक है, मीथेन के एमिशंस को ख़त्म करने के लिए, उस पर मॉनिटर रखने के लिए ये बनाया गया, ताकि जो हम किस एरिया में कितना पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, किस एरिया में कौन सी फैक्ट्री कहाँ पर कितनी मीथेन गैस को एब्जॉर्ब कर रही है, एज वेल एज कितनी उस गैस को वो बिना एब्जॉर्ब करे सीधा एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर रही है, ये सारा मॉनिटर किया जाता है। 2004 में ये GMI लॉन्च किया गया था और इंडिया ने अभी को चेयर किया स्टीयरिंग लीडरशिप मीटिंग ऑफ द GMI। नेक्स्ट, कह रहे हैं कि किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉजिस्टिक्स, एक यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म हैकाथॉन को लॉन्च करा गया? सिंपली लॉजिस्टिक्स क्या थी? ये एक हैकाथॉन थी, किस लिए? ULIP के लिए, जो कि है यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म। ठीक है, लॉजिस्टिक्स बेसिकली सिंपल सेंटेंस में बोले तो A को अगर B तक कोई सामान देना है तो उसमें जो कॉस्ट लगेगी उसको लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कहते हैं। ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट लॉजिस्टिक्स कहते हैं। ठीक है, लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री को फ़ायदा पहुंचाने के लिए कि हम कैसे अपने लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को काट सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, इसलिए एक हैकाथॉन लॉन्च की गई जिसको लॉजिस्टिक्स बोला गया। पूछा जा रहा है कि किस मिनिस्ट्री के द्वारा ये लॉजिस्टिक्स
एक हैकाथॉन को लॉन्च करा गया था। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। ये जो लॉजिस्टिक्स है ना, नीति आयोग, अटल इनोवेशन मिशन एज वेल एज इनके द्वारा सपोर्ट की गई थी, और एज वेल एज NICDC जो कि नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, इनके द्वारा ये एक हैकाथॉन को इनिशिएटिव दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अभी रिसेंटली किस स्टेट में मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा 6 न्यूक्लियर रिएक्टर्स को डेवलप किया जाएगा जिनकी कैपेसिटी रहेगी 9900 मेगावाट की। तो 6 न्यूक्लियर रिएक्टर्स मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा कहाँ पर? जैतापुर, महाराष्ट्र में। याद रखना, जैतापुर, महाराष्ट्र में। इसके साथ साथ एक और महाराष्ट्र का याद रखना, ये मुंबई में लोकेटेड रहेगा, वो है BARC, काफ़ी इंपॉर्टेंट, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। कहाँ पे हेडक्वार्टर है इसका? मुंबई, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इन दिसंबर डैश बिकेम द फर्स्ट इंडियन इंश्योरेंस कंपनी जिसने एक यूनाइटेड नेशन प्रिंसिपल फॉर रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट ऑन एनवायरमेंटल साइंस एंड गवर्नेंस के इश्यूज पर साइन किया। क्या मतलब कि हम इन्वेस्ट करेंगे कि जैसे आपका एनवायरमेंटल इश्यूज पे वर्क करने के लिए हमें, जैसे मान लो कोई फिल्टर, बहुत बड़ा फिल्टर लगाया, तो उसमें इन्वेस्टमेंट में हेल्प करेगा। कहीं पे आप कोई सोशल इशू चल रहा है, वहाँ पे ये पर्टिकुलर इंश्योरेंस कंपनी आपकी हेल्प करेगी फंड करने में। तो कौन सी ये फंड करने के लिए कौन सी इंश्योरेंस कंपनी बनी? वो है ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस। और इन्होंने किन के साथ? ये पहली इंडियन इंश्योरेंस कंपनी बनी जिन्होंने UNPRI के साथ टाइप किया। UNPRI क्या है? यूनाइटेड नेशन प्रिंसिपल फॉर रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट ऑन एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस। नेक्स्ट, इंडियन शूटर वो कौन है जिनको बेस्ट फीमेल डेब्यू का अवार्ड से सम्मानित किया गया पैरा ओलंपिक स्पोर्ट अवार्ड 2021 के टाइम? अगर यहाँ पे शूटर ना लिखा होता तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता कि वो कौन सी इंडियन है जिनको बेस्ट फीमेल डेब्यू का से सम्मानित किया गया पैरालंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड के दौरान। वो है अवनी लखेरा। तो अवनी लखेरा किस स्पोर्ट से बिलोंग करती हैं? ये शूटिंग से बिलोंग करती हैं। इनको अभी पैरालंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड के दौरान बेस्ट फीमेल डेब्यू से सम्मानित करा गया, याद रखना। और जिन्होंने सम्मानित किया, जिस कमेटी ने सम्मानित किया, वो है इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी IPC, ठीक है। और इनको, अवनी लखेरा जी को, या फिर इनको ऐसे याद रखिए, इनको पहला गोल्ड मिला था इंडिया के लिए फॉर पैरालंपिक्स, ऑलराइट, इन शूटिंग। 2020 टोक्यो पैरालंपिक्स के टाइम इनको गोल्ड मिला, इंडिया फर्स्ट गोल्ड मेडल इन शूटिंग इन पैरालंपिक्स। नेक्स्ट, वो कौन से, हु बिकेम द फर्स्ट फॉरनर, वो कौन से पहले फॉरनर बने जिनको भूटान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, जिसको नगाडक पेलगी खोरलो भी बोला जाता है, अभी इससे सम्मानित करा गया? तो वो पहले इंडियन कौन बने? फर्स्ट इंडियन या फिर फर्स्ट फॉरनर भी, इनडायरेक्टली फर्स्ट इंडियन हो गए, क्योंकि अगर वो भूटान के फर्स्ट फॉरनर हैं तो वो है कौन? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। इनको भूटान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो है नगडक पेलगी खोरलो। इसको नगडक पेलगी खोरलो को एक नाम से और जाना जाता है, जो कि है ऑर्डर ऑफ द ड्रैगन किंग। ऑर्डर ऑफ द ड्रैगन किंग, ये दूसरा नाम है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। अगर मैं इंडिया के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड की बात करूं तो वो क्या रहेगा? भारत रत्न। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन 3 होता है। इसके अलावा अगर आपको याद हो तो नरेंद्र मोदी जी को मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, अब मैं उसका उल्टा क्वेश्चन पूछता हूँ। नरेंद्र मोदी को USA के द्वारा एक अवार्ड से सम्मानित किया गया था रिसेंटली। क्या आप उस अवार्ड का नाम बताइए? मुझे होमवर्क है ये आपका, कमेंट करो नीचे, क्या नाम है उस अवार्ड का जो USA के द्वारा दिया गया था मोदी जी को रिसेंटली। नेक्स्ट हम बात करेंगे, उन पर्सनैलिटी का नाम बताओ जिनको ब्रिटेन का नाइट बैचलर फॉर सर्विसेज टू मोटर स्पोर्ट इस उससे सम्मानित किया गया, या फिर याद रखो नाइटहुड अवार्ड से सम्मानित किया गया है रिसेंटली। ये ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं, मोटो जीपी नहीं, F1 रेसर हैं ये, मर्सिडीज़ के लिए ड्राइव करते हैं। इनकी अभी ये पहले व्यक्ति बन गए जिन्होंने अपनी F1 रेसिंग में 100+ विक्ट्री रजिस्टर की है, और एज ऑफ नाउ 103 विक्ट्रीज के साथ हैं ये, या 103 विन के साथ हैं ये। कौन है ये? ये है लुइस
हैमिल्टन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये सारे क्वेश्चन हैं इनसे रिलेटेड। और इनको नाइटहुड अवार्ड से सम्मानित किया गया, किन के द्वारा? प्रिंस चार्ल्स के द्वारा, जो कि है प्रिंस ऑफ वेल्स, बकिंग। एंड इनको कहाँ पे सम्मानित किया गया था? विंसर कासल, बकिंगम पैलेस में नहीं, विंसर कासल में इनको सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट आपको बताना है अभी किस मिनिस्ट्री के द्वारा एक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसको विकास पोर्टल बोलते हैं, वो लॉन्च किया गया फॉर रैंकिंग ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन लैंड एक्विजिशन प्रोजेक्ट्स अंडर RFCTLA-RR एक्ट ऑफ डैश। तो सबसे पहले तो मिनिस्ट्री का नाम देखते हैं। कौन सी मिनिस्ट्री ने ये मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पोर्टल, विकास पोर्टल लॉन्च किया? क्या नाम रहेगा मिनिस्ट्री का? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। एंड ये किसके अंडर लॉन्च किया गया था? अंडर द RFCTLA-RR एक्ट ऑफ 2013। ये RTCLR क्या क्या है? क्या आप इसकी फुल फॉर्म जानते हैं? ये है राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट ऑफ 2013। नेक्स्ट हम पूछ रहे हैं आपसे कि 11 दिन लंबा वो 24th एडिशन ऑफ लॉकरंग फेस्टिवल कहाँ पे ऑब्जर्व किया गया था? लॉकरंग फेस्टिवल याद रखना, ये फेस्टिवल कहाँ का है? राजस्थान का है। ठीक है, फोक आर्टिस्ट के लिए है ये। 24वां इसका एडिशन था और जयपुर राजस्थान में इसको ऑब्जर्व करा गया। नेक्स्ट, नेम द ऑर्गेनाइजेशन, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताओ जिसने प्रोजेक्ट अंबर को लॉन्च किया अलॉन्ग विद जनरेशन इंडिया फाउंडेशन टू एम्पावर यूथ विद इंडस्ट्री रेवेलेंट स्किल्स। अब ये एम्बर क्या है? प्रोजेक्ट एम्बर, देखो इसकी फुल फॉर्म से ही आप समझ जाएंगे कि एम्बर की फुल फॉर्म है, एम्बर की आपकी फुल फॉर्म है एक्सेलरेटेड मिशन फॉर बेटर एम्प्लॉयमेंट एंड रिटेंशन। मतलब बेटर एम्प्लॉयमेंट और रिटेंशन उस कंपनी में वो लगे रहें, छोड़े ना, इसके लिए ये एम्बर प्रोजेक्ट। बेसिकली आपको स्किल्स प्रोवाइड करने के लिए, आपको पता होगा कि इतनी बात की जा रही है कि स्किल्स प्रोवाइड की जाएंगी। अब तो वोकेशनल सब्जेक्ट भी मैंडेटरी कर दिया 6th क्लास के बच्चों के लिए, नई एजुकेशन पॉलिसी जो आई है उसमें। तो ये अब देखो स्किल्स तो प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन उसके बाद फिर जो कंपनी उनको जॉब मिले ना मिले, कहाँ मिलेगी जब तक सरकार अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड नहीं करेगी। तो ये प्रोजेक्ट एम्बर वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के लिए है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा ये प्रोजेक्ट एम्बर लॉन्च करा गया। अगर हम NSDCS की बात करें, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की ही बात करें, तो ये 31 जुलाई 2008 को इस्टेब्लिश किया गया था, न्यू दिल्ली में इस्टेब्लिश किया गया था और AM नायक इनके चेयरमैन रहेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इंडियन गवर्नमेंट एंड जर्मनी डेवलपमेंट बैंक ने कितने मिलियन यूरो का लोन साइन किया फॉर सूरत मेट्रो रेल प्रोजेक्ट। सूरत की मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने 442.26 मिलियन यूरो लोन का एक एग्रीमेंट साइन किया जर्मनी डेवलपमेंट बैंक के साथ। नेक्स्ट, किनको अभी चांसलर अपॉइंट किया गया है ऑस्ट्रेलिया का, और ये सक्सीड करेंगे अलेक्जेंडर शेलनबर्ग को। किनको अपॉइंट किया गया है नया चांसलर ऑस्ट्रिया का? वो है कार्ल नेहमार। याद रखना ये नए चांसलर बने और ये अपॉइंटमेंट करी गई अलेक्जेंडर वैन डर बेलन के द्वारा। ये कौन है? ये प्रेसिडेंट हैं ऑस्ट्रेलिया के, ऑस्ट्रिया के, नॉट ऑस्ट्रेलिया के, ऑस्ट्रिया के ये प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट, क्या थीम रहेगी 70th इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे की, जो कि ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब बाय यूनाइटेड नेशन ऑन 18 दिसंबर 2021। 18 दिसंबर 2021 को सबसे पहले याद रखो इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे होता है। इस बार 70वां इंटरनेशनल माइग्रेंट डे होता है, ऑब्जर्व किया जाता है यूनाइटेड नेशन के द्वारा। कब? 18 दिसंबर को। पूछा गया इस बार थीम क्या रहेगी इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे की, तो क्या थीम रहेगी इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे की? वो है हार्नेसिंग द पोटेंशियल ऑफ ह्यूमन मोबिलिटी। नेक्स्ट है
कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द लॉन्गेस्ट ऑफ द अग्नि सीरीज, जो कि डीआरडीओ के द्वारा लॉन्च किया जाता है। इनडायरेक्टली या डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया कि लॉन्गेस्ट ऑफ अग्नि सीरीज मतलब इनमें से सबसे ज़्यादा रेंज किस मिसाइल की रहेगी, आपको ये बताना है। तो ये अग्नि पी नहीं 1 लिखो सबसे पहले। तो अग्नि 1 की रेंज आ जाती है आपकी 700 से 800 किलोमीटर। अग्नि 2 की रेंज आ जाती है आपकी 2000 किलोमीटर से कुछ ऊपर। 3 की आ जाती है 2500 किलोमीटर। फिर अग्नि 4 की रेंज की बात करें, जैसे जैसे बढ़ रहा है रेंज बढ़ रही है, तो 3500 किलोमीटर। और अग्नि 5 की जो रेंज आ जाती है वो आ जाती है आपकी 5000 किलोमीटर के अप्रॉक्स। तो लॉन्गेस्ट रेंज किसकी हो गई? अग्नि 5 की। नेक्स्ट हम बात करेंगे, सीसीआई ने अभी अमेजॉन को सस्पेंड कर दिया टू एक्वायर देयर स्टेक इन फ्यूचर ग्रुप, और इन पे 202 करोड़ की पेनल्टी लगा दी गई ऑन द ई कॉमर्स सेक्टर्स। सीसीआई क्या है आपका? सीसीआई होता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने सस्पेंड कर दिया अमेजॉन का जो वो अपना स्टेक एक्वायर कर रहे थे फ्यूचर ग्रुप में, एंड इन पे 202 करोड़ रुपए की पेनल्टी भी लगा दी गई है। नेक्स्ट, अभी बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज इंस्क्राइब्ड ऑन द रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। देखो इंटेंजिबल क्या होता है? इंटेंजिबल और एक होता है टेंजिबल। टेंजिबल वो चीज़ होती है जिनको आप टच कर सकते हैं, जिनको आप टच करके फील कर सकते हैं। इंटेंजिबल होते हैं जिसको आप टच नहीं कर सकते, जैसे आपका लव, इमोशंस, एयर, ये क्या है? आप इनको टच नहीं कर सकते। ये इमोशंस आपके, जब आप एंग्री होते हो, वो एक फीलिंग है, टच नहीं कर सकते, ठीक है। फिर टेंजिबल क्या हो गए? जिनको आप टच कर सकते हैं। जैसे अब अभी रिसेंटली अगर क्वेश्चन के हिसाब से बात करें तो अभी लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट में दुर्गा पूजा, जो कि एक फेस्टिवल है, क्या आप फेस्टिवल को टच कर सकते हैं? नहीं। ये फेस्टिवल कहाँ का है? कोलकाता, वेस्ट बंगाल का। तो इस दुर्गा पूजा को एक लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, मतलब इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, फ्यूचर में इनको सेव करने के लिए इसको इस लिस्ट में डाला गया, ठीक है। इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट में। किस लिस्ट में? इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ICH की लिस्ट में दुर्गा पूजा को डाला गया है कि इनको आगे, ये एक ऐसा कल्चर है, ये एक ऐसा हेरिटेज है जिसको आप, एक तो टेंजिबल नहीं है मतलब टच नहीं कर सकते, जैसे कोई क्राफ्ट होती तो क्राफ्ट को सेव कर लेते फॉर फ्यूचर रेफरेंस, लेकिन ये एक क्या है? कल्चर है, ये एक इंटेंजिबल प्रोडक्ट है, तो इसको इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट में डाला गया फॉर सेफ गार्डिंग इट। कुंभ मेला जो है आपका, ये भी एक ICH जो कि इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट है, उसमें आता है ऑलरेडी। नेक्स्ट मैं आपसे पूछता हूँ, स्मॉल फाइनेंस बैंक का नाम बताओ जो बैंकिंग पार्टनर बना अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट का। क्या रहेगा वो स्मॉल फाइनेंस बैंक? इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। अगर MD एंड CEO की बात करें तो वो है वासुदेवन नरसिम्हन जी, ये MD एंड CEO है। हेडक्वार्टर रहेगा इसका चेन्नई, तमिलनाडु में, ठीक है, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का। नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो यंगेस्ट प्रेसिडेंट कौन बने हैं चाइल्ड के यंगेस्ट प्रेसिडेंट बने हैं गैब्रियल बोरेक, मार्क करना इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, अभी वो कौन से इंडियन क्रिकेटर हैं जिनको ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया उत्तराखंड स्टेट का। उत्तराखंड में स्पोर्ट्स की अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए अभी किस इंडियन क्रिकेटर को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर ऑफ उत्तराखंड स्टेट घोषित करा गया? वो है ऋषभ पंत। नेक्स्ट आपको बताना है उस इंडियन नेवी के सेकेंड इंडिजीनियस स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर का नाम, जो कि प्रोजेक्ट 15B क्लास के अंडर आता है, जिसका अभी पहला सी ट्रायल देखा गया हमने। क्या नाम रहेगा उसका? तो वो है INS मॉर्म गोवा। ये याद रखना 19 दिसंबर को, जो कि गोवा लिबरेशन डे होता है, इस दिन इनका पहला सी ट्रायल लॉन्च किया गया। किसका? INS मॉर्म गोवा का, ठीक है, याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट। इसके साथ साथ आपको और याद रखना है INS विशाखापट्टनम एंड INS वेला,
ये आईएनएस वेला तो एक आपकी सबमरीन है और आईएनएस विशाखापट्टनम ये आपका डिस्ट्रॉयर है। इन दोनों को भी अभी इंडियन नेवी में लाया गया है, ऐड किया गया है, कमीशन डाल किया गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वो पहले इंडियन शटलर कौन बने जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता एट द मेंस सिंगल्स बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 में। तो किदाम्बी श्रीकांत ये पहले इंडियन शटलर बने जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता ड्यूरिंग दिस बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की वर्ल्ड चैंपियनशिप। अगर देखो 3 मेडल होते हैं, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज। गोल्ड मेडल किन्होंने जीता? ये जीता आपका लो केन यू जो कि सिंगापुर के हैं। सिल्वर मेडल जीता किदाम्बी श्रीकांत जो कि इंडियन है। एंड ब्रॉन्ज मेडल जीता आपके 2 लोगों ने, लक्ष्य सेन जो कि एक इंडियन है, प्लस एंडर्स एंटोनसन जो कि डेनमार्क से बिलोंग करते हैं। एंटोनसन जो कि डेनमार्क से बिलोंग करते हैं, इन दोनों ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। अगर बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की बात करें, इनका हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा? कुआलालंपुर, मलेशिया में। MALAYSIA। ऑलराइट, कुआलालंपुर मलेशिया में हेडक्वार्टर रहेगा बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का। नेम द स्टेट जिन्होंने अपनी अभी 3 नई डिस्ट्रिक्ट्स बनाई। ये आप नाम देख लीजिएगा। इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स को अभी किस स्टेट के द्वारा ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स बनाई गई हैं, किस स्टेट के द्वारा? तो वो रहेगी आपकी कौन सी स्टेट जिसमें 3 नई डिस्ट्रिक्ट्स बनाई गई? वो है नागालैंड। नेक्स्ट, गोवा लिबरेशन डे अभी हम देख चुके हैं। कब ऑब्जर्व किया जाता है? 19 दिसंबर को। ताकि, और ये क्यों 19 दिसंबर को? क्योंकि ऑपरेशन विजय की सक्सेस मनाने के लिए हर साल 19 दिसंबर को गोवा लिबरेशन डे ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में नोरा डांस ड्रामा को भी ऐड करा गया। ये नोरा डांस ड्रामा किस कंट्री से बिलोंग करता है? ये थाईलैंड से बिलोंग करता है। नोरा डांस ड्रामा काफ़ी इंपॉर्टेंट, मार्क करके चलिएगा। अभी ऊपर हमने किसका देखा था, क्या मुझे बता सकते हैं? दुर्गा पूजा को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में ऐड किया गया जो कि कोलकाता वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता है। एंड नोरा डांस ड्रामा को थाईलैंड में, इन दोनों को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में ऐड किया गया। ये एक डांस है, ये एक आर्ट है। क्या आप इसको टच कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आप इसको बस फील कर सकते हैं, नहीं उसकी मूवमेंट्स को इनेक्ट कर सकते हैं, बट यू कैन टच दैट। जैसे आप किसी चॉकलेट को या किसी एप्पल को टच कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे मल्टीनेशनल एक्सरसाइज जो कि बिम्स्टेक कंट्रीज के द्वारा, बिम्स्टेक मेंबर्स के द्वारा करी गई टू डेवलप डिजास्टर मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज। पुणे महाराष्ट्र में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। इस एक्सरसाइज का नाम पूछा गया है पेनेक्स 2021। अगर मैं आपसे बिम्स्टेक कंट्रीज का नाम पूछूं तो आप याद रखिएगा, जैसे इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका एंड थाईलैंड। ये बिम्स्टेक कंट्रीज हैं, ये मेंबर्स हैं, इनके द्वारा पेनेक्स एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई। और ये 3rd एडिशन था, ये भी याद रखना। पुणे महाराष्ट्र में ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इंडिया का पहला GIS बेस्ड ऑटोमेटिक वाटर सप्लाई सिस्टम डेवलप किया गया फॉर द सिटीजन्स ऑफ कॉन्टिनेंट बोर्ड्स अंडर ई छावनी प्रोजेक्ट। ई छावनी प्रोजेक्ट याद रखना, ये एक मोबाइल एप्लीकेशन भी है, मोबाइल ऐप भी है, एज वेल एज ये एक पोर्टल भी है, मतलब वेबसाइट भी है। इनका काम क्या है कि ये सिविक सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए डेवलप की गई थी टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तो इन्होंने, अभी पूछा जा रहा है कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया का पहला जो GIS होता है आपका, जो GIS की फुल फॉर्म होता है ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम बेस्ड ऑटोमेटिक वाटर सप्लाई सिस्टम डेवलप किया, किस ऑर्गेनाइजेशन ने? वो रहेगा भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशंस एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स के द्वारा ये डेवलप करा गया। नेक्स्ट, किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने अभी रिसेंटली एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट साइन किया नीति आयोग के साथ ताकि मिलेट प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके? तो अगर ऑप्शंस देखो, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम डायरेक्ट फूड से रिलेटेड है, मिलेट प्रोडक्शन से रिलेटेड है इंडिया में। तो नीति आयोग ने वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो कि एक यूनाइटेड नेशन का डिपार्टमेंट है, इनके साथ टाई अप किया ताकि हम प्रोडक्शन कर सकें मिलेट्स की। कहाँ पर? इंडिया में। और ये एज अ पार्ट रहेगा इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। एक क्वेश्चन ये भी याद रखना, इंटरनेशनल
ईयर ऑफ मिलेट्स किसको घोषित करा गया? 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित करा गया है। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने पहला एग्रीटेक चैलेंज लॉन्च किया गया? एग्रीटेक फर्स्ट एग्रीटेक चैलेंज कोहॉर्ट 2021 नीति आयोग के साथ मिलके स्मॉल होल्डर्स फार्मर्स अक्रॉस एशिया एंड पैसिफिक की हेल्प करने के लिए ये पहला एग्रीटेक चैलेंज कोहॉर्ट लॉन्च किया गया। किन के द्वारा, किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा? वो रहेगी यूनाइटेड नेशंस कैपिटल डेवलपमेंट फंड के द्वारा। तो देखो याद रखना, नीति आयोग, अटल इनोवेशन मिशन एंड यूनाइटेड नेशंस कैपिटल डेवलपमेंट फंड के द्वारा मिलके ये पहला एग्रीटेक चैलेंज कोहॉर्ट लॉन्च करा गया है। नेक्स्ट, किस बैंक ने टॉप किया इन द डिजिटल पेमेंट्स फॉर फिजिकल ईयर 2020-21 के लिए एज पर द डाटा रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा एक डाटा रिलीज किया गया जिसमें बताया गया कि किस बैंक ने, मैं बता ही देता हूँ, बैंक ऑफ बड़ौदा ने डिजिटल पेमेंट्स में टॉप किया फॉर फिजिकल ईयर 2021-22 के लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखना। अगर मैं एमडी एंड सीईओ की बात करूं, कौन रहेंगे? संजीव चड्ढा जी। हेडक्वार्टर वडोदरा गुजरात में रहेगा, ठीक है, याद रखना। और इसमें याद रखना, बैंक ऑफ बड़ौदा में अमालगेशन हुआ था दो बैंक का, विजया बैंक का एंड देना बैंक का। विजया बैंक का एंड देना बैंक का अमालगेशन हुआ था बैंक ऑफ बड़ौदा में। नेक्स्ट हम बात करेंगे किनको अभी रिसेंटली अपॉइंट किया गया डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड। ये कौन रहेंगे? अतुल दिनकर राणे जी। अतुल दिनकर राणे जी ये सीनियर डीआरडीओ के साइंटिस्ट हैं, सीनियर डीआरडीओ के साइंटिस्ट रहेंगे जिनको अभी अपॉइंट किया गया डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड। और ये जो ब्रह्मोस एरोस्पेस की जो टीम थी उनके कोर मेंबर भी रह चुके हैं। ब्रह्मोस एरोस्पेस किस कंट्री के साथ मिलकर बना रही है इंडिया? रशिया के साथ टाई अप है ब्रह्मोस मिसाइल का। नेक्स्ट हम बात करेंगे किस बैंक ने एक को लैंडिंग एग्रीमेंट साइन किया यूग्रो कैपिटल के साथ ताकि 10 करोड़ रुपए का एमएसएमई लोन प्रोवाइड किया जा सके। वो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने ये टाई अप करा। किस इंश्योरेंस कंपनी ने को अभी बेस्ट गवर्नड कंपनी लिस्टेड सेगमेंट अंडर द लार्ज कैटेगरी ड्यूरिंग द 21st एडिशन ऑफ ICSI नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस 2021 से सम्मानित करा गया? तो कौन सा बैंक रहेगा? वो रहेगा HDFC लाइफ। अगर HDFC लाइफ की बात करें तो 2000 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। मुंबई महाराष्ट्र इनका हेडक्वार्टर रहेगा और विभा पदलकर MD एंड CEO रहेंगी आपकी HDFC बैंक की। नेक्स्ट हम बात करेंगे अभी एक इंडिया के द्वारा रिसेंटली प्रलय नाम की सरफेस टू सरफेस गाइडेड मिसाइल को टेस्ट फायर किया गया ओडिशा कोस्ट पर। पूछा जा रहा है कि किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा टेस्ट फायर किया गया? DRDO के द्वारा। और इसको टेस्ट फायर कहाँ गया, किस लोकेशन पे? तो APJ अब्दुल कलाम आइलैंड जो कि ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा है, वहाँ पर इस प्रलय को टेस्ट फायर करा गया है। नेक्स्ट, नुगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे लोकेटेड है? ये नुगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी कर्नाटका में लोकेटेड है, याद रखना। अगर कर्नाटका में आपकी मैं बात करूँ, मिलकोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड मुकम्बिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी अलॉन्ग विद नुगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? कर्नाटका की। नेक्स्ट, अभी रिसेंटली सिटी यूनियन बैंक के द्वारा एक ऑन द गो कॉन्टैक्टलेस वेरिएबल की चेन को लॉन्च किया गया, पहली चीज़, ठीक है। दूसरी कह रहा है कि NPCI ने रुपे को कब लॉन्च किया गया? तो देखो NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया RBI के द्वारा ये इस्टेब्लिश किया गया था। ये नो प्रॉफिट के अंडर वर्क करता है, मतलब ज़ीरो प्रॉफिट के अंडर ये वर्क करता है आपका NPCI। एंड अगर NPCI की बात करें हम तो NPCI के जो MD एंड CEO हैं वो हैं दिलीप असबी जी। 2008 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था रुपे को या NPCI को। तो दोनों का आंसर क्या हो गया? 2008। एंड इनका हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा? NPCI का करंट हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में। तो करेक्ट आंसर हो जाता है 2008। नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्लोबल यूनिकॉर्न
इंडेक्स 2021 की। तो सबसे पहले यूनिकॉर्न टर्म देखते हैं क्या होता है। यूनिकॉर्न एक वो टर्म होता है, या फिर ऐसे समझ ले, ये वो स्टार्टअप है जिसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन $1 बिलियन से ज़्यादा है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं यूनिकॉर्न, उस स्टार्टअप को। तो डाटा कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2021 के, जो कि रिलीज किया गया हुरन रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा, इंडिया की क्या रैंक रही विद 54 यूनिकॉर्न्स। 2020 में इंडिया की रैंक थी 4th और 2021 में इंडिया की रैंक हो गई है 3rd। मतलब इंडिया में अब ज़्यादा यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हैं, 54 स्टार्टअप्स हैं। अगर इसी में देखें करेक्ट आंसर हो जाता है 3rd। फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन के बारे में देखें तो फर्स्ट पे आता है यूएसए, सेकंड पे आता है चाइना और थर्ड पे आता है आपका इंडिया इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे किस ऑर्गेनाइजेशन ने एक फाइनेंस कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ ताकि प्रोवाइड फर्स्ट लोन ऑफ €250 मिलियन फॉर आगरा मेट्रो रेल प्रोजेक्ट यूपी में आगरा मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के द्वारा किस ऑर्गेनाइजेशन ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को $250 मिलियन का €250 मिलियन का लोन अप्रूव करा है। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रहेगी वो बताइए ज़रा। यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक रहेगा वो। नेक्स्ट, किस कंपनी ने एक एग्रीमेंट साइन किया KfW डेवलपमेंट बैंक के साथ ताकि $169.5 मिलियन का लोन प्रोवाइड किया जा सके पावर सेक्टर एंड रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए। जैसे आपकी कोई फैक्ट्री है, वो किसी नॉर्मल फॉसिल फ्यूल की एनर्जी पर रन कर रही है, तो उसको आप कुछ ऐसी ग्रिड्स लाएंगे, उसको ऐसे मॉडिफाई करेंगे कि वो अब रिन्यूएबल एनर्जी पे वर्क करे। पावर सेक्टर में विंड टर्बाइंस, सोलर पैनल्स, विंड टर्बाइंस, आपकी जियोथर्मल एनर्जी को हार्नेस करने के लिए, डैम्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, डैम्स को रिन्यू करने के लिए, डैम्स को बनाने के लिए, ये सारी क्या आपकी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर है और रिन्यूएबल एनर्जी से ही आपकी एनर्जी प्रोड्यूस करने की बात की जा रही है अब आगे। तो किस कंपनी ने ये साइन किया, ये करा रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन के द्वारा साइन किया गया ये। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेंस एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी ऑफ हॉकी की। इंडिया ने कौन सा मेडल जीता। देख, तो इंडियन हॉकी टीम को कौन सा मेडल मिला, अभी ब्रॉन्ज मेडल मिला ड्यूरिंग द एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी, और साउथ कोरिया को गोल्ड मेडल से सम्मानित, या उनको गोल्ड मेडल जीता, वो जीती। तो करेक्ट ऑप्शन हुआ ब्रॉन्ज और साउथ अफ्रीका। अगर मैं प्लेयर ऑफ द मैच की बात करूं, प्लेयर ऑफ द मैच की बात करूं, वो कौन बने, हरमनप्रीत सिंह आपके प्लेयर ऑफ द मैच बने, एंड इंडिया को ब्रॉन्ज मेडल, साउथ कोरिया को गोल्ड। नेक्स्ट हम बात करेंगे बोहंग बिहू, वेयर इज द ट्रेडिशनल फेस्टिवल बोहंग बिहू एनुअली सेलिब्रेटेड। ये कहाँ एनुअली सेलिब्रेट किया जाता है बोहंग बिहू, असम में ये एनुअली सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, इसको फॉर्मली इसको आप ऐसे रख सकते हैं कि असमीज ये न्यू ईयर है, असम का न्यू ईयर को क्या होता है, बोहंग बिहू। जैसे कहते हैं नहीं बिहू कहाँ का सेलिब्रेट किया जाता है, तो असम। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने ट्राइफेड के साथ साइन किया टू लॉन्च ट्राइबल संवाद नेटवर्क, ए नेटवर्क ऑफ सोशल एंड बिहेवियरल चेंज फॉर ट्राइबल पीपल्स। ट्राइबल पीपल को एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन देने के लिए, लाइफस्टाइल सिखाने के लिए, उनका कल्चर चेंज करने के लिए, उनको एजुकेशन प्रोवाइड, गुड हैबिट्स, ये सारी चीज़ें जनरेट करने के लिए यूनिसेफ ने ट्राइफेड के साथ टाइप किया ताकि एक ट्राइबल संवाद नेटवर्क डेवलप किया जा सके, ताकि उनके बीच में कम्युनिकेशन हो, एज वेल एज उनको अवेयर किया जा सके कि थोड़ा अपना खुद कमाए खाएं, उनको क्या गुड हैबिट्स होती हैं, एजुकेशन, दुनियादारी के बारे में अपडेट दिया जा सके। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अभी आरबीआई ने कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन की जो डेडलाइन है ना, उसको अपडेट कर दिया गया है 30 जून 2022 तक। ठीक है, 30 जून 2022 तक। ये डेडलाइन की डेट पहले क्या थी, ये थी पहले 31 दिसंबर 2021, अब उसको बढ़ा के 30 जून 2022 कर दिया गया है। एंड ये जो टोकनाइजेशन है ना, ये किसके डायरेक्टिव्स के अंडर आता है, आरबीआई के पेमेंट एंड सेटल सिस्टम एक्ट जो 2007 में आया था, उसके अंडर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया KfW डेवलपमेंट बैंक के साथ
140 मिलियन यूरो लोन का एंड 2 मिलियन यूरो ग्रांट फॉर एनर्जी रिफॉर्म प्रोग्राम इन विच स्टेट। मध्य प्रदेश में एनर्जी रिफॉर्म प्रोग्राम के लिए 2 मिलियन यूरो और अलग का ग्रांट और 140 मिलियन यूरो का लोन इंडिया ने केएफडब्ल्यू बैंक के साथ साइन अप किया ताकि मध्य प्रदेश में एनर्जी का रिफॉर्म ला सके, एनर्जी हर घर में बिजली पहुंचाई जा सके। इवन जो फैक्ट्रीज या जो कंपनी आपकी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी पे वर्क कर रही है उनको रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट करा जा सके। नेक्स्ट हम बात करेंगे द टर्न ओवर विजार्ड सेवियर ऑफ थाउजेंड्स। ये एक ऑटोबायोग्राफी रहेगी अरूप रॉय चौधरी की, द टर्न ओवर विजार्ड सेवियर ऑफ थाउजेंड्स। ये किन के द्वारा बुक रिलीज की गई? एम वेंकैया नायडू सर जो कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, इनके द्वारा इस बुक को रिलीज करा गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं अभी इंडिया के ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ने रिटायरमेंट ले ली है सारे फॉर्म ऑफ क्रिकेट से। ये इंडिया के कौन से हाईएस्ट विकेट टेकर हैं? तो ये इंडिया के 4th हाईएस्ट विकेट टेकर हैं इन टेस्ट क्रिकेट। नेक्स्ट हम बात करेंगे जिंकिंग्स-री। ये जिंकिंग्स-री यूनेस्को के द्वारा इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग घोषित दिया गया अभी। ये आपका जिंकिंग्स-री को आप याद रखना, इसको एक और नाम से जाना जाता है। क्या मुझे बता सकते हैं ये है कहाँ पे? पहले मेघालय में बता दिया, लेकिन इसको लिविंग रूट ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। बहुत फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। जैसे ये आपकी एक छोटी रिवर है, इधर पहाड़ इधर पहाड़, इस पहाड़ के यहाँ से ये ऐसे ब्रिज बना हुआ है एंड ये जो ब्रिज है ना ये आपका सिर्फ जड़ों से बना हुआ है, रूट से बनाया हुआ ब्रिज है। तो ये कहाँ पर है? मेघालय में, लिविंग रूट ब्रिज। एंड इसको ही अभी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग से घोषित करा गया है। इसको जिंकिंग्स-री भी बोला जाता है। A good news to all our viewers. Recently, we have launched an course that is IBPS PO exam course. This is a 25-day free course to crack IBPS PO mains exams. This course duration will be from 13th of December to 14th of January. This course will help you to boost your preparation. This course could be attempted any number of times with no day limit. In this course, we'll be providing you information related to your admit card details, previous year cutoffs, notification related to such exam and many others detail. Apart from this, you can see here, we are covering the whole syllabus here like data analysis on D3. Then you are getting quiz of 20 questions with such questions that you can prepare that will help you, or they are the expected questions that will be coming in the exams. So these questions are very helpful. These 20 questions you will be getting on daily basis and they will help you to boost your preparation. So go fast and subscribe to this course. So friends, this was our video. I hope you enjoyed our video. If you liked our video, do hit the like button, share the link with your friends, and if you haven't subscribed to our channel or if you are new to our channel, then do subscribe because it motivates us to bring a better content for you guys. Also, if you have any trouble regarding login or payment or any other issues, then you can reach to us on our mail that is support@affairscloud.com, or you can call us on the number 9677333862 and we'll resolve your issue as soon as possible. Also, you should go and check our courses that are available at a very reasonable price and that will help you to boost your preparation.